Good morning, all. And today it's an interesting session where, in a real time, I'm going to solve the entire JEE mains paper. Of course, the idea of this session is not just to solve the question paper, but to tell you how exactly you should attempt a paper to get more than 99 percentile in the examination. In fact, my target will be to get 100 percentile because seeing the difficulties level of physics and chemistry, you can put even up to 1 hour 30 minutes to mathematics, and definitely it's possible. So those who are having good maths, they can get even 100 percentile in mathematics. In fact, some of our students have already got it. Anyway, coming to the point, uh, the first thing is, if your preparation is around 200 marks, then your strategy should be to work on the reduced sample size. So instead of attempting the entire paper, if you are not too much confident with mathematics session, then it's better to attempt, let's say, 70% of the paper or 80% of paper, depending upon your confidence. Okay, so in the beginning, in the first go, the first thing that you have to do is to go through the questions. Let's say you are good in calculus or coordinate geometry, okay, and you are not so confident in complex numbers or, let's say, probability, so it's better to leave it in the first go and don't even see that questions. Okay, so roughly you should see if the questions becomes very simple, and if it is already known to you, then only attempt, otherwise you can leave it. So in the first go, in half an hour, try to solve at least 6 to 7 questions correct, so that you get 30 marks in first half an hour. In next half an hour, try to get again 10 questions correct, so that you can get 30 to 40 marks, because of course you can't avoid one or two silly mistake. It will be inevitable in the examination, right? तो आपका क्या होगा, इन द फर्स्ट 1 आवर डेफिनेटली आपका स्कोर जो है 70-80 तक चले जाएगा. Now for many students, now you can't make your score high, because now the topics in which you are not comfortable is being asked. So it's still fine, even if after investing 1 hour 10 minutes or 20 minutes, if you can score 70-80 marks, it's not a bad marks for those whose preparation is not at super level. Okay, anyway, so let's stop this pravachan and give you the real time analysis of the question paper. So the first thing, let's say, if as a student, if I have to look at the screen, so the question starts with permutation and combination. So maybe I'll give a try. But before you give a try, it's better to first roughly go through the question paper. How to go through? You should go like this. Like, okay, first is PNC. Don't write because it will take time. Okay, second is coordinate. Third is complex number. And you can see roughly, okay, complex number, some basic algebraic is there. Fourth is again coordinate. We have this 3D thing. So this becomes your favorite because it must be easy, right? 3D coordinate system must be easy. Moreover, plane is not there. Now it's calculus, so it looks difficult. So maybe at least it looks difficult. So we leave it in the first go. First question, if you're good in PNC, then you can attempt. So let's call it easy. At least while looking, maybe some questions might look easy, but it might be difficult when you're doing it. So let's see how I am doing. Okay. Second is centroid ortho center का. Now if you are comfortable with coordinate, basic अगर होता है तब तो easy लिखो, otherwise you write medium. This feels okay, let's say medium, because maybe little calculation. If coordinate geometry, again it feels medium. Parabola, since it's a standard, to calculation based, so maybe we can try. It's Newton's law of cooling, so direct question is there. Moreover you do in physics, so इसको definitely we can easy. So all easier question I'll try in the first go. Second, 8 in this ton of constant APGP. Maybe it will take time 2 to 3 minutes, but still it's better to try it in the first go. Why? Because I'll be sure what to be done. Question 15, number of solutions. You must have done similar question before, so that makes it easy because it's a previous year JEE mains question. 10th is already previous year JEE mains question, which is direct copy of previous year mains question. In fact, who knows the answer, it will 1 minus 1 0. So that's the advantage of solving past year question. 16 is standard model, तो इसको medium हम बोल देते हैं if you have not solved the past year. 16 साइन इनवर्स वाला स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये हर एक बुक और हर एक कोचिंग वाला देता है, तो इसको इजी करेंगे. एरिया ऑफ बाउंडेड फिगर, इसको मीडियम बोल रहे हैं क्योंकि कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लगेगा. 17th मे बी इफ यू वांट like by binomial theorem, although there is no much binomial theorem, but still is time taking, so I am telling it tough. मीन मीडियन मोड वेरिएंस, इट विल बी टाइम टेकिंग, तो मीडियम टू टफ इसको बोल देते हैं. ऑल्दो इट्स इजी डायरेक्ट फार्मूला, बट स्टिल आई एम टेलिंग इट्स टफ. अब फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू. अब इफ़ यू नो बेसिक कैलकुलस, तब तो इसको आप मीडियम में, आई एम डूइंग द एनालिसिस इन द बिगनिंग. शॉर्टेज डिस्टेंस, इट विल बी टाइम टेकिंग, लेकिन फिर भी इसको मैं मीडियम टू टफ आई एम टेलिंग बिकॉज थोड़ा टाइम लगेगा. 24 कैलकुलेशन बेस्ड है, सो लेट्स कॉल इट टफ इन द फर्स्ट गो. ऑल दिस आई एम कॉलिंग इट टफ इन द फर्स्ट गो.
ठीक है। अब ये इंटीग्रेशन दिख रहा है चाइनीज स्पेसिस दिस स्पेसिस मे कैन आई कैन ट्राई, तो इसको ईजी बोल दिया। लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्रेंगल क्वाड्रेटिक है, सो मे बी इट विल बी मीडियम रूट ऑफ, सो विल लीव। दिस इज डायरेक्ट पैरेललोग्राम, तो ये ईजी हो गया। Now if you know the adjoint property, then direct it will be damn easy, otherwise it will be damn tough. Okay, 2024 was nothing. Next is calculation based, so I can tell medium root of, क्योंकि दिख रहा है एक्सपेंशन और बेसिक लिमिट पे, इफ यू हैव बेसिक कमांड देन इट विल बिकम इजी, अदरवाइज फिर आपको टफ लगेगा। 28 line passes through this 3D problems are always easy if you have done 3D, so I'll recommend, I have already uploaded a lecture on 3D past year, just yesterday, day before yesterday, you go through that, that's more than enough for 3D। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इट विल बी टफ, क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा सॉल्व करके फिर बाउंड्री कंडीशन देना होगा। सेट रिलेशन इन कंडीशन इट विल बी टफ फॉर यू, बिकॉज यूजुअली स्टूडेंट्स हैव लेस कमांड ऑन दिस। अब देखो, बाय डूइंग दिस ऑलरेडी वी हैव इन्वेस्टेड 6 to 7 minutes वी हैव इन्वेस्टेड, बट नाउ आई एम श्योर लाइक विच क्वेश्चन टू डू, सो आई विल स्टार्ट विथ ऑल द ईजियर क्वेश्चन। ठीक है, अब ईजियर क्वेश्चन में ऑल्सो देर विल बी अदर वे अराउंड। व्हाट विल बी अदर वे अराउंड मीन, सपोज इफ एट सम मोमेंट इफ आई गेट स्टक, तब तो फिर उसको छोड़ना होगा। ठीक है, एंड इफ आई एम नॉट गेटिंग स्टक देन इट्स फाइन, सो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ वेज इन विच 21 आइडेंटिकल एप्पल्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 children, so we have children 1, children 2 and children 3, such that each child gets at least 2 एप्पल। अब दो एप्पल सबको चाहिए, तो मान लो अगर मैं इसको 2 एप्पल दे दिया, पर नहीं दो दे दो, इसको 2 एप्पल दे दिया, इसको 2 एप्पल दे दिया, सो वी आर लेफ्ट विथ हाउ मेनी एप्पल, 6 ऑलरेडी कंज्यूम, सो वी आर लेफ्ट विथ 15 एप्पल्स। अब 15 एप्पल्स को हमको 3 बच्चे में रखना है। अब दो तो उसके पास है, गोलू बोलू बिक्की के पास। सो नाउ वी हैव, let's say number of apples that child 1 gets is C1, number of apples that child 2 gets is C2 and child 3 gets is C3, that must be 15 now। अब child 1 can get even 0 apples, child 2 can get 0 apple, child 3 can get 0 apple। क्यों? because 2 already have given। अब ये नंबर ऑफ नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन है, जो कि बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बाबू। यू कैन सी माई PNC lectures also which is there in playlist। तो यहाँ से डायरेक्ट आंसर आएगा 15 + 2C2, तो 17C2। 17C2 इज 17 × 16/2। और फिर ये कैलकुलेशन करने में आपको थोड़ा टाइम नहीं लगेगा, 136 आंसर आ गया। देखो, जैसे ही तुम फर्स्ट आंसर ले आओ, क्योंकि अब ये स्टैंडर्ड मॉडल पे था, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। चलो, अब इस कॉन्फिडेंस से क्या होगा ना, मैं पहले ईजी को ट्राई करूँगा। अब सेकंड वाला ईजी और मीडियम है, तो इफ़ यू लव कोऑर्डिनेट देन यू कैन ट्राई, अदरवाइज इफ यू डोंट लव तो फिर छोड़ के नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चले जाओ। फर्स्ट राउंड पे इजी वाला कर लो, ठीक। तो चलो सेकंड वाला इफ आई ट्राई, ABC denotes centroid circumcenter ortho center। Okay, so we already have 3 points: centroid, circumcenter and ortho center। So that is given to us, HGO। We already know from the property that HGO, this is very standard property, like the centroid divides the line joining ortho center and circumcenter in 2:1। so you write HGO and then 2:1, ऐसे you remember this। okay, ऐसे करना है, HGO is 2:1, remember like this। तो now everything is known बाबू, B is known, C is known, तो तुमको A फाइंड करना है। अब ये तो फिर बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया, कैसे? बिकॉज दिस पॉइंट ऑर्थो सेंटर इज व्हाट, -6, -8। आई विल डू कैलकुलेशन ऑल्सो। सेंट्रॉइड ये पता नहीं, ठीक है, एंड सर्कम सेंटर इज 3,4। तो यहाँ से सेंट्रॉइड लेट्स से x, y। तो अब ये मैं रेशियो निकालूंगा 2:1 का। 2:1 से क्या आया, 2:1 से a का वैल्यू जो आया वो 0 आ गया, मीन्स x इज 0 और y 0। ठीक है, तो व्हाट इज द पॉइंट P? द मोमेंट a इज 0 एंड y इज 0। तो यहाँ से जो पॉइंट P मेरा बना, तो a 0 कर दो, सो जस्ट 3,5। सो पॉइंट P इज 3,5। द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट 3,5 फ्रॉम द लाइन मेजर्ड पैरेलल टू लाइन। अब ये क्वेश्चन फिर पिछले सेशन में पूछा गया है, तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन टाइम लगेगा थोड़ा। सो 3,5 का डिस्टेंस टू ए लाइन, 2x + 3y = 4 मेजर्ड पैरेलल टू दिस लाइन।
नाउ अगेन इफ़ यू स्टार्ट थिंकिंग फॉर द कॉन्सेप्ट, इसका मतलब आप पास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं किया, क्योंकि ये ऑलरेडी पास्ट ईयर का क्वेश्चन है. तो इसका डिस्टेंस फ्रॉम L1 अलॉन्ग L2 के अलॉन्ग मीन्स अलॉन्ग L2. ठीक है. सो व्हाट आई कैन डू इज, अब बताओ, या तो पैरामेट्रिक फॉर्म में यू कैन राइट या फिर दूसरे फॉर्म में लिख सकते हो. सो वी वांट दिस डिस्टेंस. तो एक तो है जो वी नो द स्लोप ऑफ दिस लाइन, सो विद द सेम स्लोप, सपोज स्लोप ऑफ दिस लाइन इज m, सो स्लोप ऑफ दिस विल बी m. तो स्लोप ऑफ दूसरा लाइन क्या है, दिस इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ x by y विच इज हाफ 1/2. तो इस लाइन का भी स्लोप हाफ हो जाएगा. तो यहाँ से हम इस लाइन का इक्वेशन लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, फिर पॉइंट निकाल के डिस्टेंस फॉर्मूला निकालेंगे. एक तो वो तरीका है, उसमें 2 मिनट लगेगा भी तो वर्थ है, क्योंकि तुमको फिर दूसरा क्वेश्चन ही एग्जैक्टली आ जाएगा. अब देखो यहाँ हम एक्सप्लेन कर रहे हैं तो हम टाइम लेंगे ज़्यादा, लेकिन आप एज ए स्टूडेंट आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, ठीक है ना, और डायग्राम भी रफ बना के क्लियरली लिखो. लेकिन अब दूसरा तरीका क्या है, सिंस वी ऑलरेडी नो स्लोप ऑफ दिस इज हाफ, तो हम पैरामेट्रिक फॉर्म ले लेंगे, बिकॉज आई वांट टू कैलकुलेट आर. तो इस पर कोई भी पॉइंट क्या हो जाएगा, 3 + r cos थीटा. ठीक है, दैट विल बी 3 + r cos थीटा एंड 5 + r sin थीटा. ठीक है, बट वी नो tan थीटा इक्वल टू हाफ है, tan थीटा हाफ है. तो tan थीटा अगर हाफ हो गया तो फिर ये √5 हो गया. तो cos थीटा कितना हो गया, बेस बाय हाइपोटेनस. ठीक है, 2/√5. और sin थीटा कितना हो गया, 1/√5. तो द पॉइंट इज 3 + 2r/√10, सॉरी 2r/√5 एंड 5 + r/√5. ठीक है, ये एनी वेरिएबल पॉइंट ऑन दिस लाइन, एनी वेरिएबल पॉइंट ऑन दिस लाइन, बट दिस सेटिस्फाइज L1. तो ये जो है इसको सेटिस्फाई करेगा. तो x के बजाय क्या लिखेंगे, 3 + 2r/√5. सो 2 टाइम्स, लेट मी राइट दिस, 2x + 3y = 4, 2x + 3y = 4. So x equals 2 + 3 + 2r/√5 and 5 + r/√5. 3 + 2r/√5 and y = 5 + r/√5. अब जैसे ही इस इक्वेशन में डालोगे तो ये कितना जाएगा, 2x मीन्स 6 + 4r/√5 + 15 + 4r/√5 = 4. यहाँ से आ गया 9r/√5 = 21. तो ये 17 -17. सो r = 17/17√5. अच्छा, यहाँ से आया 3 और 2. x is 3 + r/√5 and 5 + r/√5. 2 है यार. ठीक है, तो यहाँ से आ गया आपका 17√5/7. 17√5/7 आ रहा है. अब देखो ये क्या हुआ, अब मेरा 17√5/7 आ गया. अब वो डिस्टेंस है ही नहीं, क्योंकि 17√5/5 है. तो अब मैं कैलकुलेशन गलती किया हूँ. अब कहाँ पे कैलकुलेशन गलती किया, अब ये आपको चेक करना होगा. देखो, तो रियल टाइम में जब आप करोगे तो कैलकुलेशन मिस्टेक होगा. अब देखो, एक तो हैंड राइटिंग में वहाँ पे रफ पे बनाऊंगा, तो मैं क्वेश्चन पेपर पे ही बना रहा हूँ, सो इट्स गेटिंग क्लमजी. ठीक है, तो अब कैलकुलेशन मिस्टेक एक बार चेक कर लो, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको पता है. तो 3 + 2r/√5 था, 5 + r/√5 था. इसको 2 से किया तो 6 और 3 से किया 15. तो वो तो सही है. r से इट विल बी 4r/√5 एंड 3r/√5. तो देखो 4r/√5 था. ओके, तो दिस क्वांटिटी और ये कितना था, 3r/√5 था ना, मैं 5 दे दिया था. देखो बहुत ही सिली मिस्टेक था, जो कि आप भी करोगे. तो 4 + 3 7 हो जाएगा. इसका मतलब ये 7r/√5 था. तो 17√5/7 एंड दैट्स द आंसर. तो इवन आफ्टर सिली मिस्टेक, जो कि सेकंड क्वेश्चन में हुआ, स्टिल फिर भी आप इसको सॉल्व करें. इनफैक्ट ये सेम सिली मिस्टेक वन ऑफ आर स्टूडेंट हैज़ डन. तो मैं आपको वही एक्सपोज किया. जो थोड़ा भी अगर आप अलर्टनेस खोते हो तो यहाँ पे यू हैव टू पे, क्योंकि क्वेश्चन आसान ही है कॉन्सेप्ट वाइज. ओके, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो फिर कैलकुलेशन में भी थोड़ा टाइम लगेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो अभी तक कितना क्वेश्चन बना, 2 क्वेश्चन बना, 1 और 2. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ठीक ठाक थोड़ा जानते हो, तो थर्ड क्वेश्चन, a³ + b³ इज नोन एंड a + d नोन.
a plus b known. So we have to find the value of z1 4 मीन्स a4 प्लस b4. अब इसका दो तरीका है, एक तो तुम एक क्वाड्रेटिक इमेजिन करो जिसका रूट्स z1 z2 हो, वो स्मार्ट वे में हो सकता है, ठीक है. एक क्वाड्रेटिक इमेजिन करो जिसका रूट्स z1 z2 हो. तो मान लो अगर ये t स्क्वायर माइनस 5t and plus some lambda equal to 0. If I tell this is a quadratic equation, so definitely for this quadratic, if z1 and z2 is the root, sum of root is 5. But sum of cube of root is 20 plus 59. So lambda may not necessarily be real. तो अब ये स्मार्टेस्ट वे है जो आपको सॉल्यूशंस दिया हुआ है कोचिंग में, वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब को एक्सपेंड करके भी आप कर सकते हो. लेकिन देखो स्मार्ट तरीका से क्या करोगे, इससे भी कर सकते हो. अब ना व्हाट इज टी क्यूब z1 cube plus z2 cube? We know since z is the root of this equation, so t square is 5t minus lambda. So I can tell t cube will be 5t square minus lambda t. अब t square क्या है, ये फिर back to 5t minus lambda, so that will be 25t minus 5 lambda minus lambda t. तो वो क्या होने वाला है, that becomes t times 25 minus lambda minus 5 lambda. Okay, so you see like t cube I am able to write in terms of t. तो यहाँ से z1 क्यूब प्लस z2 क्यूब क्या होगा, इंस्टेड ऑफ t यू पुट z1 एंड z2 एंड देन ऐड. सो वी गेट 20 प्लस 15i इक्वल्स 25 माइनस लेमडा टाइम z1 प्लस z2 एंड दैट इज 5 एंड माइनस 5 लेमडा. ठीक है, माइनस 5 लेमडा. अब यहाँ से देखो 5 कैंसिल हुआ तो 4 प्लस 3i इक्वल्स 25 माइनस लेमडा माइनस लेमडा. सो 4 प्लस 3i, कैलकुलेशन सही से करना बाबू, इक्वल्स 25 माइनस 2 लेमडा. सो 2 लेमडा इज 21 माइनस 3i. सो लेमडा इज 21 माइनस 3/2. अब देखो लेमडा का ऑलरेडी आपको वैल्यू पता है. अब अगर लेमडा का वैल्यू पता है सो वी वांट z1 4 प्लस z2 4. अब टी क्यूब इज ऑलरेडी नोन. ठीक है, टी क्यूब इज व्हाट, टी टाइम्स 25 माइनस लेमडा माइनस 5 लेमडा और टी स्क्वायर इज नोन. तो यहाँ से फिर तुम t4 निकाल लोगे आसानी से. आई एम यूजिंग न्यूटन्स रूल. सो t4 विल बी 25 माइनस लेमडा टाइम्स टी स्क्वायर. ठीक है, एंड दैट माइनस 5 लेमडा टी. सो नाउ व्हाट इज 25 माइनस व्हाट इज टी स्क्वायर अगेन, टी स्क्वायर इज 25 माइनस लेमडा एंड 5t माइनस लेमडा, राइट. 5t माइनस लेमडा एंड माइनस 5 लेमडा टी. ठीक है, सो t4 प्लस z1 4 प्लस z2 4 जो होगा. अब यहाँ पे t का वैल्यू रखेंगे और z1 का वैल्यू रखेंगे और z2 का वैल्यू रखेंगे. सो व्हाट वी आर गेटिंग इज 125, क्योंकि यू कैन क्लियरली सी इफ आई विल पुट z1 4 प्लस z2 4 करके z2 4, तो वो आ जाएगा 25 माइनस लेमडा इंटू 5 z1 माइनस लेमडा, राइट, एंड प्लस 5 z2 माइनस लेमडा एंड माइनस 5 लेमडा z1 प्लस z2. अब फिर z1 प्लस z2 ऑलरेडी 5 है. यहाँ से z1 प्लस z2 पता है, लेमडा का वैल्यू पता है, 25 माइनस लेमडा पता है, तो इसका मॉड लोगे तो इसका मॉड हो जाएगा. और लेमडा पुट करोगे तो अब तुम देख सकते हो इक्वेशन ये सिंपल आ जाएगा. अब ठीक है, फिर उसका जैसे ही आप मॉड लोगे, द मोमेंट आई विल टेक मॉड, उसका मॉड का वैल्यू आ जाएगा रूट वो 75 हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ से जो आंसर निकल के आया दैट इज 75. अब इसको डेफिनेटली अब ये ऐसा सोचना थोड़ा मुश्किल था कंसेप्ट वाइज. इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जे एडवांस तो फिर दिस थॉट प्रोसेस विल कम, लेकिन थोड़ा फास्ट हो जाएगा. अगर आप नहीं कर रहे हो तो फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब कर दो, ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए प्लस बी. सो फ्रॉम देयर यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ z1 z2. वंस यू नो z1 z2, z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर यू कैन फाइंड यूजिंग ए प्लस बी होल स्क्वायर. और फिर z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर का होल स्क्वायर कर लो. तो 3 स्टेप में आप उसको इवैल्यूएट करोगे, सब कुछ कैंसिल करके अच्छा आंसर आएगा 75. द मोटिवेशन वाज बिकॉज ऑफ दीज ऑप्शंस वेर ऑल्सो नाइस. तो अब देखो क्वेश्चन तो देखने में ईजी और मीडियम था जो कि एक्सपेक्ट किया, लेकिन कैलकुलेशन हैवी हो रहा है. इसमें आपको 5 मिनट तक लग सकता है. स्टिल इट्स वर्थ, क्योंकि अगर हम 15 मिनट हो भी गया एनालिसिस में, स्टिल यू सी 3 क्वेश्चन तो हमारे पास बन के आ चुका है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्ट अटैक करेंगे ये वाला क्वेश्चन को. ठीक है, मिरर इमेज ऑफ ए पॉइंट. वाई? क्योंकि ये 3D का डायरेक्ट क्वेश्चन दिख रहा है. अभी तक आई एम कॉन्फिडेंट क्योंकि तीनों का तीनों आंसर भी मेरा सही हो रहा है. कैसे समझा सही हो रहा है? बिकॉज आंसर पूरा परफेक्ट आ गया, लॉजिक भी मुझे
क्लियर लग रहा है क्या करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आई विल टेक दिस पॉइंट 235 एंड विल टेक द इमेज इन दिस लाइन। अब लाइन को फिर से नहीं लिखेंगे क्योंकि लाइन ऑलरेडी यहाँ पे लिखा गया है। तो इसका इमेज सपोज दे हैव गिवन अल्फा बीटा गामा। So we already know like this will be perpendicular to this vector P and Q will be perpendicular to the direction of line. ठीक है, this line is this equal to there in print this question. So this line is passing through 1 2 3 1 2 3 in the direction of 2 3 4 direction of 2 3 4. ठीक है, तो फिर क्या करेंगे अल्फा -2 बीटा -3 and gamma -5. Don't write ijk, that will kill your time. So you know this is a vector dot 2 3 4. अब ये एक लाइन में भी कोई बच्चा लिख देगा तो ही विल सेव मोर टाइम। वो ऐसे ही लिखेगा 2 टाइम्स अल्फा -2 3 टाइम्स ये 4 टाइम्स। अब जैसे ही तुम जीरो करोगे तो यहाँ से तुम्हारा इक्वेशन क्या आ गया, यहाँ से इक्वेशन अब देखो डायरेक्ट आ गया 2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 4 गामा इक्वल्स 33। डॉट करने से देखो 2 अल्फा 3 बीटा एंड 4 गामा आएगा। सो यू डोंट नीड टू फाइंड एक्चुअली अल्फा बीटा गामा, ये तो 10 सेकंड का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इंटरेस्टिंगली क्वेश्चन इज डायरेक्टली आस्किंग दिस आंसर इज 33। अब यहाँ से भी ये क्वेश्चन बन गया मेरे पास। ठीक है ना, यहाँ से भी आई मेड इट। चलो नेक्स्ट पैराबोला वाला अगेन वी कैन ट्राई इवन पैराबोला, क्योंकि ये भी आसान सा दिख रहा है। आसान सा इन द सेंस लाइक डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड होगा। कोनिक सेक्शन एंड 3D ज्योमेट्री इज द मोस्ट इजीएस्ट पोर्शन। यू डोंट नीड टू मग अप एनी फार्मूला बिकॉज द सिलेबस इज वेरी लिमिटेड। P is a parabola with vertex 2,3 and directrix here. The parabola with vertex 2, 3 and some directrix 2x plus y to 6. The only definition is parabola is a locus of all points such that these two distance is equal. Okay. Let ellipse of eccentricity, first read the question, passes through the focus of parabola. So वर्टेक्स इज नोन, सॉरी नॉट फोकस। तो फिर देखो फिर हम गलती की यहाँ पे, इसीलिए आपको थोड़ा गलती कम करना है। 2,3 एंड डायरेक्ट्रिक्स इज नोन, तो फोकस जो होगा दैट विल बी फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स का फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस टू डायरेक्ट्रिक्स। ओके, सो F प्लस D/2 विल बी वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट। So basically from vertex we can find foot of perpendicular to directrix. Once you know that we can find F by midpoint formula. ठीक है, तो यही इसका आइडिया है। अब हाउ टू फाइंड दिस अल्फा कोमा बीटा। अब अल्फा कोमा बीटा आप दोनों तरीक़ों से बोल सकते हो। सपोज दिस इज अल्फा कोमा बीटा, राइट। सो इवन आई कैन राइट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन और द स्लोप ऑफ दिस लाइन विल बी व्हाट, बीटा -3 बाय अल्फा -2 and slope of this line into the slope of this directrix will be -1. So into slope of directrix is -half equals -1. तो यहाँ से वन रिलेशन वी गॉट इन अल्फा बीटा। ठीक है, फिर दूसरा रिलेशन क्या जाएगा अल्फा बीटा का, दूसरा रिलेशन अल्फा बीटा का क्या होगा, इट्स नॉट ओनली परपेंडिकुलर। Okay, these two line is not only perpendicular but it also passing through any perpendicular line is also passing through 2,3. ठीक है, एंड मोर एवर अल्फा कमा बीटा मिड पॉइंट है। तो अगर अल्फा कमा बीटा मिड पॉइंट है तो यहाँ से सपोज दिस पॉइंट फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज x, y, सो x प्लस अल्फा बाई 2 इज 2 एंड y प्लस बीटा बाई 2 इज 3। तो यहाँ से वी नो x एंड y इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा एंड दैट मस्ट सेटिस्फाई डायरेक्ट्रिक्स लाइन। टू इक्वेशन टू नो अल्फा और बीटा मिल गया। अब जैसे ही अल्फा बीटा मिला, तो आपको फोकस मिल गया। अब फोकस मिलने के बाद क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम तो पता है, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम इज 2b² तो उसका आप स्क्वायर कैलकुलेट कर लो। ठीक है, सो दैट विल गिव द आंसर। अगर आप ये कैलकुलेट करोगे तो b² का वैल्यू आएगा 328/25। सो 2b² होल स्क्वायर यू वांट एंड दैट विल बी 656/25. Okay, since I have done this question already yesterday, so I am not giving you full calculation, but the point is again, so 7 you can do given again 3 to 4 minutes. ठीक है, अब इससे आपका कॉन्फिडेंस आएगा। नेक्स्ट चलो फिर से आप कोऑर्डिनेट, बिकॉज आवर टेम्पो इज ऑलरेडी सेट फॉर कोऑर्डिनेट आफ्टर डूइंग दिस क्वेश्चन। तो फिर हम क्या किए, व्हाट वी कैन डू इज, फिर से मैं इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकता हूँ।
ठीक है. लेट अ वेरिएबल लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल मीन्स द पॉजिटिव एक्सेस ए एंड बी. तो व्हाट इज सेंटर ऑफ द सर्कल? -2GS -G -F. तो -G कितना हो जाएगा? 2GX के फॉर्म में है तो 8,2. आई होप इट इज क्लियर. ठीक है. तो the moment you know the center of the circle is 8,2. Now the question is variable and it passing through 8,2 and means coordinate axis at 2 point. अब ये डिटो कार्बन कॉपी है जेई मेंस प्रीवियस ईयर का और जेई एडवांस का, फिर भी हम बना देते हैं. तो यू हैव टू फाइंड देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ OA प्लस OB का मिनिमम वैल्यू. ठीक है. अब एक तो यहाँ आप ट्रिक से भी बना सकते हो, क्योंकि अगर OA प्लस OB का मिनिमम वैल्यू कब होगा? दिस प्लस दिस ज्योमेट्रिकली. तो उतना सपोज इट्स टेकिंग टाइम फॉर यू टू थिंक ज्योमेट्रिकली, तो फिर सपोज स्लोप ऑफ दिस लाइन इफ यू टेक m. So now we can take, suppose let's say slope of this line is m, so blindly we can write y minus 2 is going to be m times x minus 8. So what will be the x intercept? Put y equal to 0, y equal to 0 से x का वैल्यू आया 8 minus 2 by m and put x equal to 0, so यहाँ से दो y का वैल्यू आया means OB length that is going to be 2 minus 8m. नाउ वी नो m इज लेस देन 0, ऐसा लग ही रहा है इंटरसेक्ट करने के लिए, तो ये x और y दोनों पॉजिटिव है. सो वी वांट 8 minus 2 by m प्लस 2 minus 8m का मिनिमम वैल्यू. तो अब आप यू कैन राइट 10 minus 8m प्लस 2 by m. मिनिमम वैल्यू के लिए यू कैन क्लियरली डिफ्रेंशिएट दिस. वहाँ से 8 minus 2 by m स्क्वायर 0 हो जाएगा. सो m इक्वल टू प्लस माइनस 4 हो जाएगा. क्लियरली m -4 है, डायग्राम से ऑब्वियस है. m जैसे ही आप -4 दोगे तो ये क्वान्टिटी हो गया -32 एंड दैट बिकम्स माइनस m का वैल्यू कितना हो गया? m स्क्वायर इज 1/4, सो m इक्वल्स सॉरी प्लस माइनस हाफ. और देखो यहाँ पे भी कैलकुलेशन था, 8 इक्वल्स 2 by m स्क्वायर हो रहा है. ठीक है. तो m स्क्वायर इज 1/4, इज नॉट प्लस माइनस 4. m इक्वल्स प्लस माइनस हाफ होगा. जैसे ही प्लस माइनस हाफ होगा, अब तुमको पता है m इक्वल्स माइनस हाफ इज वैलिड सॉल्यूशन. तो माइनस हाफ अगर इस पर डालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4 और वो हो गया 1 और ऑलरेडी हाफ. ठीक है. दिस प्लस दिस का वैल्यू पूछ रहा है, तो मिनिमम जो आया 2 by m का -8 करके माइनस हाफ पे 18 आंसर आ रहा है. ठीक है. सो विल गेट 18 एज आंसर. सो वी हैव सॉल्व क्वेश्चन 4 ऑल्सो. अब ये टेम्परेचर वाला भी हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली हाउ वी कैन डू दिस. अब दिस फ्रॉम फिजिक्स ऑल्सो डायरेक्टली यू नो द सॉल्यूशन. अगर आप वो नहीं भी करोगे तो इंटरपोलेशन नहीं करना है. ठीक है. तो आपको एग्जैक्ट सॉल्यूशन इसका निकालना है. सो dt/dt इज गिवन, सो आई कैन इंटीग्रेट दिस फ्रॉम इनिशियल टेम्परेचर 100 यू कैन सी. ठीक है. 160 ना इनिशियल टेम्परेचर इज व्हाट? t इक्वल टू 0 पे इट्स 160 एंड वी वांट टू पर्टिकुलर टाइम t. सो फ्रॉम 160 डिग्री टू पर्टिकुलर 160 degree temperature to particular time temperature t और dy/dt को इधर dt लिख देते हैं. ठीक है. अब इस वाले प्रॉब्लम को व्हाट वी कैंसिल, क्लियरली इट्स वेरिएबल सेपरेबल, सो व्हाट वी कैन डू इज dt/t minus 80 is minus k dt. And now we know initial temperature is 160, so 160 to any time t is t equal to 0 to any time t. अब ये इंटीग्रेट करना बहुत ही आसान है. इसको मैं यहाँ पे इंटीग्रेट कर देता हूँ नीचे. ठीक है. तो जैसे ही ये इंटीग्रेट करोगे तो ये हो गया ln t minus 80 160 टू t पे ऑफकोर्स डिग्री में ये माइनस के टी. तो यहाँ से आपका जो आया ln t minus 80/80 इक्वल्स माइनस के टी विच गिव्स t इक्वल्स 80 प्लस 80 ई का पावर माइनस के टी. ठीक है. अब तुमको बोल रहा है व्हेन टेम्परेचर इज 120, सो 120 इक्वल टू 80 प्लस 80 ई का पावर माइनस के 15. जब t इक्वल टू 15 है तो 120 है इनिशियल कंडीशन से. तो यहाँ से ई का पावर माइनस के इंटू 15 जो है वो हाफ आ गया. ठीक है. तो अब ये इन्फॉर्मेशन पता है, इनिशियल कंडीशन से k का वैल्यू आएगा. अब हमसे पूछ रहा है T45 पे, सो T45 इज 80 प्लस 80 ई का पावर माइनस के बाई 45, सॉरी माइनस के 45. टाइम जो आएगा माइनस के इंटू
सो दिस बिकम्स दिस इंटू माइनस के इंटू 45, और 45 का राइट -15 के होल क्यूब। अब इसका वैल्यू ऑलरेडी पता है हाफ, तो ये हाफ क्यूब हो जाएगा 8, तो ये 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, तो ये जो आंसर है वो 90 हो गया। तो ये भी आसान क्वेश्चन था, ठीक है। देखो क्वेश्चन तो आसान होंगे ही, बस आपको टाइम का खेला करना है। क्वेश्चन 8, तो अभी तक 8 क्वेश्चन में मैं ऑलमोस्ट 1 2 सब कुछ कर लिया, 3 4 और 5 छोड़ा है, 6 7 8, सिर्फ एक क्वेश्चन छूटा 5, ठीक है। तो 8 क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको 28 मार्क्स यहाँ पे आ चुके हैं। चलो नेक्स्ट 5 में बाद में करूँगा। APGP वाला टाइम टेकिंग लग रहा है, तो इसको मैं छोड़ सकता हूँ, ठीक है, फिलहाल के लिए। अब ये अगर आप पास्ट ईयर किए तो पता है, लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो आई हैव टू रिलेट 7x एंड fx लिमिट इज गिवन, ठीक है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है और इसका लिमिट जो है वो दे रखा है 1 है। द लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी f ऑफ 5x बाय x पूछ रहा है। अब देखो अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, कोई भी फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो अगर ये x का वैल्यू है, ये 5x है और ये 7x है, ठीक है। तो ऑफकोर्स 7x बड़ा होगा 5x से और x से, क्योंकि हमको x इन्फिनिटी पे पूछ रहा है, इट मीन्स x पॉजिटिव पे पूछ रहा है, नेगेटिव में उल्टा हो जाएगा। तो अब मैं बोल सकता हूँ इस पे जो आउटपुट आएगा और 5x पे आएगा और 7x पे आउटपुट आएगा, तो क्या हो जाएगा, f of 7x is definitely more than f of 5x and definitely more than f of x diagrams. So we want what? F of 5x by x. So it means we want this divided by f of x. अब तुम क्लियरली देखो, ये तो 1 हो गया। So if I'll take limit x tends to infinity, ये quantity is already 1 they have given. तो इसका वैल्यू क्या आ गया? It's sandwich between 1 and 1, so it must be 1. तो it means x tends to infinity पे 1 1 है, फाइनाइट है, 1 - 1 आंसर 0 हो गया। तो ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन था, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो गॉन डायरेक्टली जस्ट बाय द बेसिक डेफिनेशन। अब दोज हु आर थिंकिंग सर इसका आइडिया कैसा है, कुछ नहीं, आप लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन यही मेन बना लो, आइडिया पूरा क्लियर है, ठीक है। बिलीव मी, आई एम नॉट हाइपिंग एनीथिंग बाबू, बिकॉज वी हैव ट्रेंड सो मेनी स्टूडेंट इन द लास्ट 7 to 8 years. इफ़ लास्ट 5 ईयर्स ऑफ मेंस आप कर रहे हो तो आपका 99 परसेंटाइल आना चाहिए। इफ़ लास्ट 5 ईयर्स ऑफ मेंस प्लस एडवांस कर रहे हो तो 99.9 परसेंटाइल आना चाहिए, प्रोवाइडेड यू आर राइटिंग अ टेस्ट सीरीज, एनी टेस्ट सीरीज जो रिलीवेंट है, बिकॉज दैट shows you how meditative you are. और अगर आप बेसिक एक्सरसाइज एंड यू आर इनटू स्पोर्ट्स, एटलीस्ट यू आर प्लेइंग फॉर like 1 hour daily and doing little bit meditation, तो आपका ये भी सिली मिस्टेक कम होगा, देयर इज़ नो अदर वे आउट। द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, बाय द वे यहाँ पे मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, कुछ इंटेंशनल है, सम मिस्टेक ऑब्वियसली आई एम डूइंग नॉट इंटेंशनली, लेकिन सम मिस्टेक्स आर इंटेंशनल। मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम में कैसे आपको कूल रहना है, और ये सिर्फ एक मेडिटेटिव पर्सन ही कर सकता है, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है e का पावर sin x टू e का पावर, तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है e का पावर sin x को अगर तुम t मान लो, अब यहाँ पे sin x मत लिखो, e का पावर s मान के t करो, और t - 2/t = 2 आ गया। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछ रहा है, तो यहाँ से ये तो क्वाड्रेटिक बन गया, सो या तो ग्राफिकली भी बना सकते थे, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली इट्स क्वाड्रेटिक, सो -2 - 2 सो t का वैल्यू इज व्हाट -b प्लस माइनस b² 4 - 4ac 8/2, सो वी हैव 2 + √12/2। अब एक √12 इज 3 पॉइंट समथिंग, तो एक तो निगेटिव आंसर आ गया। अब e का पावर समथिंग निगेटिव होगा ही नहीं, e का पावर तुम -1 लो वो भी पॉजिटिव है, e का पावर 2 लोगे तो पॉजिटिव होगा, इसका मतलब नेगेटिव वाला तो नहीं आएगा। दूसरा पॉजिटिव आ गया 2 + √12/2, अब ये 5 पॉइंट समथिंग बाई 2, सो 2 पॉइंट समथिंग। अब e का पावर sin x कैसा होगा, e का पावर sin x कैसा होगा ग्राफ, e का पावर sin x अगर तुम y लोगे तो y डैश e का पावर sin x इंटू cos x, ठीक है। सो दिस इज ऑलरेडी पॉजिटिव, दिस इज ऑलरेडी पॉजिटिव, बट cos x कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, cos x कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। अब e का पावर sin x जो है वो कुछ भी हो, क्योंकि sin x इज डांसिंग फ्रॉम -1 to 1, सो e का पावर sin x मैक्सिमम e तक जाएगा और मिनिमम 1/e तक जाएगा, ठीक है। लेकिन मेरा जो वैल्यू आया वो देखो, मेरा वैल्यू आया वो है 2 + √12/2, तो अगर तुम फील करोगे तो 2 पॉइंट समथिंग है, लेकिन e इज ऑलरेडी 2.71। तो अब मेरे पास एक केस बनता है, क्या केस बनता है, अगर ये 2.71 से कम हो जाए 2 + √12/2, तब तो फिर मेरा सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। लेकिन अगर 2 + √12/2 इफ इट इज ग्रेटर देन e, देन विल हैव नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो चलो अब एनालाइज करते हैं। तो अब इसमें व्हाट वी कैन डू, मतलब आप कैसे आप उसको कंपेयर करोगे,
15 क्वेश्चन में उसको कैसे कंपेयर करोगे? तो अब ये भी कंपेयर करने का एक अच्छा तरीका है। तो आप सपोज ब्लाइंडली इफ आई टेक दिस बाई 2 इज़ मोर देन ई, मुझे नहीं पता है, सो इफ़ आई टेक मोर देन ई देन इट मीन्स 2 + √12 विल बी मोर देन 2 ई। ठीक है, इसका मतलब 2 × 1 - ई, इसका मतलब √12 विल बी मोर देन √12 विल बी मोर देन 2 टाइम्स ई - 1। अब स्क्वायर करेंगे तो 12 इज मोर देन 4 टाइम्स ई - 1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से दिख रहा है, इसका मतलब 3 जो है वो बड़ा होना चाहिए ई - 1 होल स्क्वायर से, एंड ये डेफिनेटली ट्रू है क्योंकि गैप भी काफ़ी है। इज 2.71 - 1, सो 1.71 का होल स्क्वायर डेफिनेटली 3 पे तो नहीं जाएगा, वो तुम कैलकुलेट कर सकते हो, 2 पॉइंट समथिंग पे रह जाएगा। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही था। अगर कोई बच्चा उल्टा लेके स्टार्ट करेगा तो फिर यहाँ थप्पड़ लग जाएगा, ही विल गेट 3 लेस देन ई - 1 होल स्क्वायर, जो कि बिल्कुल गलत है। तो यहाँ से कितना सॉल्यूशन आ गया, ये तो विंडो के बाहर चले गया, है 0 सॉल्यूशन। ठीक है, अब 17th क्वेश्चन को भी आप चाहो तो 11th 17 इस सब को भी कर सकते हो, लेकिन अभी 17 को फॉर टाइमिंग सपोज में छोड़ देता हूँ। अब आसान क्वेश्चन कौन है? 16, बिकॉज साइन वर्स साइन 5 वी नो। साइन वर्स साइन 5 कितना आ जाएगा? 5 - 2 5, एंड कॉस इनवर्स कॉस 5 2 π - 5। हाउ? अब देखो, ये डायरेक्टली यू कैन ड्रॉ फ्रॉम ग्राफ। द बेस्ट वे टू डू दिस इज बस इन ITF यू मस्ट नो द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स साइन। ठीक है, और आप ऐसे भी कर सकते हो, सपोज ए ये है तो साइन ए का वैल्यू कितना हो गया? साइन पाई 5 आ गया। अब साइन ए इक्वल साइन 5, तो ए विल बी आइदर 5 और पता है ना साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, ए का वैल्यू 5 आएगा। अगर मैं 5 माइनस पाई माइनस 5 ले लूँ, पाई माइनस थीटा इज ऑल्सो साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे गैस भी मार सकते हो, तब पर भी वो होगा। अगर 2π + 5 ले लूँ तब पर भी ये वैल्यू देगा। ठीक है, अगर मैं फिर 5 - 2π ले लूँ, क्योंकि 2π - पाई लूँगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि पाई माइनस थीटा ऑफ साइन, इससे मैं साइन थीटा, और 2π + थीटा, और 2π - थीटा, 2π - 5 विल गिव माइनस ऑफ दैट, इसलिए मैं माइनस लिया तो फिर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या किया? 3π - 5 लिया, ये भी आ गया। अब तुम यहाँ से देखो, जो भी ए का वैल्यू आएगा वो विंडो में होना चाहिए -1 पॉइंट समथिंग टू 1 पॉइंट समथिंग, बिकॉज ए मस्ट बी फ्रॉम -π/2 to π/2। तो अब 5 तो है ही नहीं, तो ये तो गया। अब ये कितना हो जाएगा? 3 पॉइंट समथिंग -2 पॉइंट समथिंग, ये भी गया। ये तो बहुत बड़ा हो गया। 5 - 2π देखो इस 6 पॉइंट समथिंग, तो -1 पॉइंट समथिंग, 3π तो बहुत ज़्यादा हो गया। इसका मतलब 5 - 2π सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटीज है जो इस विंडो में है, तो इसका आंसर ही हो गया। ऐसे ही cos b को इफ आई टेक cos 5, तो अब मेरा जो भी b का वैल्यू आना चाहिए दैट मस्ट बी इन द विंडो ऑफ 0 to π अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1/2 के कंडीशन के कारण। तो अब b का वैल्यू कितना आ जाएगा? अब तुमको पता है cos थीटा इक्वल्स और cos अल्फा है, तो वो 2nπ। ठीक है, आप देखो ऐसे 2nπ ± 5 आएगा। अब 2nπ ± 5 मीन्स एक तो आंसर आ गया 5, मतलब ±5, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। अगर n का वैल्यू अगर मैं 1 दूँ, n का वैल्यू 1 दूँ तो फिर ये जाएगा 2π + 5 और 2π - 5। ठीक है, अब तुम चेक करते जाओ। ऑफकोर्स 2π + 5 उस विंडो में नहीं है, बट 2π 6 पॉइंट समथिंग -5, 1 पॉइंट समथिंग इज डेफिनेटली इन द विंडो ऑफ 0 to π। तो ये आंसर डायरेक्टली 2π - 5। कोई बच्चा इसको ग्राफिकली भी बना सकता था, साइन इनवर्स साइन x का ऐसा ग्राफ होगा, तो तुम देख सकते हो 5 जो होगा, बिकॉज दिस इज ऑलरेडी 2π, तो 5 जो आएगा वो 2π से थोड़े आगे रहेगा। जैसे आप 2π से थोड़े आगे जाओगे तो ये जो आउटपुट आया, ठीक है, वो आ गया 5 - 2π, क्योंकि आउटपुट का लेंथ कितना हो जाएगा? 2π - 5, लेकिन निगेटिव एक्सिस में है, तो 2π - 5 को माइनस कर दो। सो इन दैट सेंस द क्वेश्चन बिकम्स वेरी, सो यू नो द वैल्यू ऑफ ए 5 - 2π। बी का भी वैल्यू आपको पता है, ठीक है ना। ए बी का भी वैल्यू 2π - 5 आ गया, स्क्वायर करके ऐड करो, सो 2π - 5 होल स्क्वायर विल गिव 8π का -45 +4, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ये भी एक ठीक ठाक क्वेश्चन था, मतलब बहुत ही स्टीरियोटाइप्ड वाला क्वेश्चन था जो डायरेक्टली भी नो। अब अगर आप चाहो तो ये बाइनोमियल वाला भी इस कॉन्फिडेंस से कर सकते हो, ठीक है, या फिर उसको लास्ट में वी कैन कीप, either we can do it right now or we can do it in the last.
ओके चलो बाइनोमियल वाले का भी मैं करूँ. सो व्हाट विल गेट. अब इसको भी आप कॉन्फिडेंस से कर सकते हो अगर जो बच्चे को कॉन्फिडेंस है, या फिर इसको छोड़ सकते हो. ठीक है, तो अभी मैं इसको फिलहाल छोड़ रहा हूँ क्योंकि आपको एन में थोड़ा मैनिपुलेट करना होगा. अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, इधर ये फंक्शन वाले करो या फिर ये मैट्रिक्स वाले करो. अब तुमको टाइम देखना है. अगर मान लो 40 मिनट्स तुम्हारा चले गया तो ऑफकोर्स आपका कैलकुलेशन स्लो है. कैलकुलेशन स्लो इसलिए क्योंकि आप बहुत प्रैक्टिस नहीं किए हो. तो ठीक है, तो फिर अब तुम उसी को अटैम्प्ट करो. जैसे मैट्रिक्स वाला ज़्यादा वो लग रहा है कैलकुलेटिव वेस्ट. इवन इफ़ यू नो द आइडिया लाइक XYZ ABCD 3x3 मैट्रिक्स से स्टार्ट करेंगे और पूरा मैट्रिक्स ही हम फाइंड कर लेंगे इस इक्वेशन से. फिर इसमें दे के चेक करेंगे दैट वाला कंडीशन. ठीक है, फॉर नो सॉल्यूशन इनफाइनाइटली मिनिमम. अब देखने से तुमको पता चल रहा है ये एनीवे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनेगा. तो एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन तो हो ही नहीं सकता. ठीक है, तो ये तो ऐसे ही गया. लेकिन अभी इस तीनों में कुछ भी आंसर हो सकता है. तो फिर आपको वो तो डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा विदाउट इवैल्यूएटिंग. तो कैलकुलस वाला में भी वी कैन अटेम्प्ट क्योंकि ये यूजुअली आसान होता है कैलकुलस को करना. सो 14 क्वेश्चन में कंसीडर अ फंक्शन डिफाइंड बाय एफ. ठीक है, अब ये फंक्शन जो है वो ऑलरेडी डिफाइन किया गया है. अब फंक्शन भी आसान है. फंक्शन किस सेंस में आसान है कि आप फंक्शन को डिफाइन कर सकते हो log x is their mod. So we'll have two cases when log x is greater than 0, when log x is less than 0. When log x is greater than 0, clearly this is log x graph. It will greater than 0 when x is more than 1 and less than 0 when x is from 0 to 1. तो अगर मैं फंक्शन को देखूँ तो ये 0 to 1 में कैसा दिख जाएगा 1 by e to the power minus log x. Right? Because in 0 to 1 it will open as minus log x e का power log x. Sorry, it will open as e का power log x for x belonging to 0 to 1. And when x is more than 1 is positive, so it's e to the power minus log x for x more than 1. So ये मेरा फंक्शन हो गया. Now if m and n be respective number of points where f is not continuous and f is not differentiable. तो अब इसका ग्राफ भी बना सकते हो. e का पावर log x कैसा दिखने वाला है e का पावर log x is just x by definition. ठीक है, ये तो डेफिनेशन है log का. गोलू का पावर log of same base गोलू x is just x. Why? Because you can take log of गोलू on both side and log गोलू x is log गोलू x. तो 0 से 1 तक तो इसका डेफिनेशन 0 पे इज नॉट डिफाइंड है, सो इट विल गो लाइक दिस. राइट, अब 1 पे एनीवे इट्स गिविंग अ फाइनाइट वैल्यू. 1 पे 1 आ रहा है. फिर 1 के बाद व्हाट इज दिस क्वांटिटी इज 1 बाय एक्स. सो 1 बाय एक्स का बेसिक हाइपरबोलिक टाइप का होगा. सो यू कैन क्लियरली सी इट्स नॉट डिफरेंशिएबल एयर क्योंकि यहाँ पे इट्स लीनियर एंड सडन इज हाइपरबोलिक. तो कॉर्नर सेफ्ट इज देयर. सो नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी इज 1 एंड नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ कंटिन्यूटी इज 0. नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंस इज 1. m प्लस n इज 1. तो ये तो फिर काफ़ी आसान क्वेश्चन था. ठीक है, देखो इसको मैं छोड़ रहा था लेकिन फिर भी ये आसान निकला तो वो बन गया. 19 को विल ट्राई थोड़ा लेटर. और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन L1 एंड L2 लाइन पासिंग थ्रू दिस 2 पॉइंट इन परपेंडिकुलर टू दिस. अब दिस इज फाइन बिकॉज लाइन पासिंग थ्रू these 2 points, L2 is the line passing through these 2 points, okay, and perpendicular. The shortest between line L1 and L2, where L1 is this and what is L2? L2 is the line passing through the points A and B and perpendicular to line x minus 3 and this. अब देखो, अब ये इन्फॉर्मेशन का कोई यूज ही नहीं है. क्यों? क्योंकि if L2 is a line passing through 2 points, line will be fixed because point A is minus 4, 4, 3. So we don't know like why they have given that information. What is the direction of this L2? Because we know L2 is passing through this point in the direction of B minus A. यहाँ से भी मैं कर सकता हूँ in the direction of we'll get 3, 2, 0. Right? So the problem, if directly this is the problem, ये तो गलत प्रॉब्लम हो गया. ठीक है, क्योंकि ये प्रॉब्लम गलत क्यों हो गया?
अगर 2 पॉइंट दिया गया है तब तो लाइन L2 विल बी फिक्स्ड। अब फिर बोल रहा है लाइन L2 नॉट ओनली पासिस टू दिस 2 पॉइंट बट ऑल्सो परपेंडिकुलर टू दिस। अब वो फिक्स लाइन परपेंडिकुलर इससे है या नहीं, सो देखो 3 इंटू -2 -6, 3 इंटू 2 6 1 इक्वल 0। इट मीन्स दिस इन्फॉर्मेशन इज ऑफ नो यूज़। ये तो ऐसे ही बकवास दे दिया था, तो इस यूजलेस इन्फॉर्मेशन, क्योंकि लाइन विल बी यूनिकली फिक्स बाय जस्ट दिस 2 पॉइंट। सो इफ लाइन इज फिक्स, इफ इट इज whether it's perpendicular or parallel and depends upon the given fixed line। तो यहाँ पे इज डेफिनेटली परपेंडिकुलर होगा ही, इफ दे आर टेलिंग। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, L1 लाइन इज गिवन, L2 लाइन इज गिवन, आपसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ रहा है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स आपको क्लियरली पता है, सिंस दे आर नॉट पैरेलल, क्योंकि इसका डायरेक्शन देख रहे हो 3 2 0 और 2 -3 दे आर नॉट पैरेलल, सो दे मस्ट बी SQ, अदरवाइज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल बी 0। तो SQ लाइन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज व्हाट, यू फाइंड अ फिक्स पॉइंट A and B विच इज गिवन 1 -1 -4, और वो यहाँ पे एक भी पॉइंट दिस इज नॉन, and this is N1, this direction is N2, so basically shortest distance will be the component of B minus A along a perpendicular to N1 and N2, so a line perpendicular to N1 and N2 will have a direction N1 cross N2, so the formula that will come is when you see the derivation N1 cross N2 B minus A का projection if I'll take, so I'll get this shortest distance divided by mod of N1 cross N2, so the projection will be mod B minus A cos theta, तो N1 क्रॉस इनटू का मैग्नीट्यूड को हटाएंगे, इसका रेट ले लीजिए और वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर दिस आई हैव सॉल्व्ड इन यस्टरडेज क्लास, लेकिन आपको 2 से 3 मिनट्स विल टेक, नॉट मोर देन 3 मिनट्स, क्योंकि देखो सिर्फ आ गया था, दिस विल कन्फ्यूज यू, सो इट वाज रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन ऑफ नो यूज़। तो यहाँ से ऑप्शन 3 आ जाएगा। ठीक है, अब 24th क्वेश्चन भी अब देखने में थोड़ा मान लो ये डायरेक्ट ऐसा दिखा हुआ नहीं लग रहा है, तो फिर इसको छोड़ सकते हो। ठीक है, इन द फर्स्ट गो, फिर बाद में इसको ट्राई करते हैं। 25 क्वेश्चन, दोज हु ऑलरेडी नो द प्रॉपर्टीज, सो इट्स ऑलरेडी डन, क्योंकि प्रॉपर्टी क्या है, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज दैट ऑफ A इंटू I। ये अब यहाँ से आ जाएगा, इफ विल टेक दैट ऑन बोथ साइड, सो दैट ऑफ ADJ ऑफ A इज दैट ऑफ A n -1। ठीक है, पावर n -1, दैट ऑफ ADJ एडजॉइंट ऑफ A विल बी दैट ऑफ A n -1 का होल स्क्वायर, इज गिवन इन एवरी बुक। आप सिंगेज या फिर कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठा के देखो तो वहाँ पे मिल जाएगा। आई एम नॉट रिकमेंडिंग सिंगेज बुक बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल टू डू ऑल द बुक्स सेपरेटली इन 1 ईयर। आप क्वालिटी क्वेश्चंस बनाओ, कॉन्सेप्ट करो, ठीक है, और स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स बनाओ। सिंगेज अच्छा बुक है बट इट्स नॉट वर्थ, वो मेंस के लिए सही है। न्यू टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज नॉट देयर, मेंस के लिए इज परफेक्ट बट नॉट फॉर एडवांस, क्योंकि एडवांस के लिए वेराइटीज ऑफ प्रॉब्लम मिसिंग है वहाँ पे, इट्स मोनोटोनिक। एनीवे द बुक इज डेफिनेटली गुड, एवरी बुक इज गुड। तो यहाँ पे व्हेन आई एम टेकिंग 2 एडजॉइंट आई विल गेट n -1 होल स्क्वायर। अब इसका प्रूफ कैसा आएगा, ए को एडजॉइंट ऑफ ए से रिप्लेस कर दो, जैसे एडजॉइंट ऑफ ए से रिप्लेस करोगे ये हो जाएगा डेट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का पावर n -1, डेट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ से तुम क्लियरली देख सकते हो जाएगा दिस का पावर n, सो दिस का पावर n -1। ठीक है, तो n -1 होल स्क्वायर आएगा, तो 24 टाइम्स में व्हाट विल गेट डेट ऑफ ए n -1 टू द पावर 2024। नाउ n इज 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, तो दिस विल बी दैट 2 टू द पावर 2024। अब डेटा का वैल्यू इज ऑलरेडी 2, so the question becomes what, 2 to the power 2 का पावर 2024। अब ये हो गया। अब इसका क्या मतलब है, वेदर a to the power b to the power c, a to the power bc और a to the power b to the power c, okay, इस अदर वे ऊपर, ओके। सो पहले 2 to the power 2024 यू ऑलवेज फॉल फ्रॉम स्काई, ऊपर से नीचे आते हैं, नीचे से ऊपर नहीं जाते हैं, ग्रेविटेशनल फॉलोवर। 2 का पावर 2024, इसका मतलब है 2 का पावर 2024 फर्स्ट लेंगे, फिर इसको 2 का पावर निकालेंगे। अब ये आसान है, क्योंकि देखो अब 2 का पावर 2024 को वी कैन एनालाइज, ठीक है, क्योंकि हमको पूछा है रिमाइंडर वन डिवाइडेड बाय 9 मतलब 3 के मल्टीपल में वी हैव टू थिंक। सो 2 का पावर 2024 कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर इंटू 2 का पावर 2022। अब ऐसा क्यों सोचा, क्योंकि 9 के मल्टीपल में 9 18 या फिर 9 के संबंध में 3 के बारे में सोचो, 2 का 3 से कनेक्शन है, सब 3 -1 इंटू ये लिख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट इज ऑलरेडी डिविजिबल, ठीक है। अब ये बच गया आपका 2022। अब 2022 ही क्यों सोचा, क्योंकि इट्स ऑलरेडी, सो नाउ व्हाट वी गॉट इज 4 टाइम्स ऑफ, और इसको भी तुम लिख सकते हो, ये कितना हो गया, सॉरी 4 टाइम्स ऑफ 2 इज 8। 2 का पावर 2022 को कैन बी रिटन एज 8 टू द पावर 674, ऐसा लिखा है क्योंकि 9 के फॉर्म में लिखा है, तो 8 इज 9 -1 का पावर 674।
और देखो 9 माइनस वन टू द पावर समथिंग विल बी डेफिनेटली इन द फॉर्म ऑफ, क्योंकि 9 माइनस वन मल्टीप्लाई हो रहा है 24 टाइम्स, तो ये 9 टाइम्स गोलू और माइनस वन जब सब टकराएगा और चूर चूर होके 1 बनेगा, तो इसका मतलब 4 टाइम्स ये जो एक्सप्रेशन है वो तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा 4 इंटू 9 टाइम्स समथिंग एंड प्लस 4, तो उसका रिमाइंडर तो 4 आ गया। इट मीन्स 9 से डिवाइड करने पे ये जो पोर्शन है दैट विल गिव अ रिमाइंडर ऑफ 4। ठीक है, तो फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, दैट कैन बी रिटन एज 4 टाइम्स लाइक 9 लेमडा प्लस 4, ऐसे ही लिखेंगे ना, 9 लेमडा प्लस 4, कुछ इस टाइप का आया। तो क्वेश्चन है अब अगर मैं इसको फिर से डिवाइड करूँ, ठीक है ना, रिमाइंडर जब अब ये एक्सप्रेशन जो डिवाइड हो रहा है 9 से, तो फिर क्या आएगा। तो अब आप इसको देख सकते हो, फिर से इसको तुम क्या लिख सकते हो, ये 16 इंटू 2 का पावर क्यूब इंटू 3m हो गया, क्योंकि आइडिया है पूरा 9 के मल्टीपल में लाना। सो दिस इज 16 इंटू 8 का पावर 3m, क्योंकि 9 से डिवीजन है ना, तो आप 2 का ऐसा पावर सोचो जो 9 के करीब हो, या तो 4 है कोई 3 के करीब है तो इसको स्क्वायर करने से 9 के करीब हो जाएगा, या फिर डायरेक्टली आने। अब 8 को फिर से लिखा 9 माइनस 1 का पावर 3m, अब फिर 9 माइनस 1 का पावर 3m इन 9 टाइम्स हैज़, और प्लस -1 जो है वो 3 टाइम्स जाएगा। ठीक है, तो -1 अगर 3 टाइम्स यहाँ पे गया तो आप क्लियरली देख सकते हो m का जो वैल्यू है वो ऑलरेडी इवन है, तो ये +1 देगा। इसका मतलब इसको 16 से मल्टीप्लाई करके 16 इंटू समथिंग प्लस 16, तो इसका रिमाइंडर 16 आ गया। ठीक है, सो 16 mod 9 आ गया ना, मतलब 9 से डिवाइड करने से रिमाइंडर 16 आया। अब रिमाइंडर 16 का क्या मतलब है, अगेन वी हैव अपॉर्चुनिटी टू डिवाइड बाय 9, सो फाइनली आंसर जो आएगा वो 7 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो आंसर आया वो अच्छा था, 7। इट वॉज अ टफ क्वेश्चन, द टफ मतलब टेक्निकल क्वेश्चन था। आपको एक तो एडजॉइंट का प्रॉपर्टी आना चाहिए, जो कि ऑब्वियस था, अगर आप सही में जेई के बच्चे हो तो आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, आई एम नॉट ट्राइंग टू डिफेम एनीवन, बट आई होप रियलिटी आपको पता होना चाहिए, बिकॉज वाटर कूलर कन्वर्सेशन क्रिएट करने वाले बहुत हैं। Okay, the point is to benefit you because there are so many channels already available and most of them are doing good work. ठीक है, सब अपने अपने मेहनत पे शिक्षक तो शिक्षक ही होते हैं, all of they are honest and doing good work. लेकिन my channel is different from others in the sense like why part should be there, that should be your prime importance. When the why is known, the how becomes obvious. तो आप logically सब कुछ को solve करो, then it will be fun doing things and do relevant things. ठीक है, which is for your JEE and this. थोड़ा स्मार्ट प्रॉब्लम सॉल्व करोगे नहीं तब मजा आएगा। तो ये प्रॉब्लम ही बन गया, थोड़ा टाइम लगा लेकिन बन गया। नेक्स्ट इज वेक्टर्स वाला 26। अब देखो जब इंटीजर टाइप है तो इसमें सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम भी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे ऑफ कोर्स लाइक बीइंग अ टीचर, अब सब क्वेश्चंस मुझे सही दिख रहा है और आसानी दिख रहा है, बिकॉज माई ब्रेन इज एक्सपोज टू सो मेनी प्रॉब्लम्स। बीइंग ए स्टूडेंट यू विल बी बायस्ड विद सम टॉपिक्स, सो इट्स बेटर टू ट्राई दिस। अब ये वाला भी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं बताया हूँ पने किंग्स लगाएंगे, जैसे ही किंग्स लगाओगे सो एक्स विल बी रिप्लेस विद पाई माइनस एक्स होल स्क्वायर, और ये दोनों सेम हो जाएगा, फिर ये सेम हो जाएगा, फिर ऐड करो किंग्स लगा के। ये क्वेश्चन भी आई हैव सॉल्व्ड इन डेफिनेट इंटीग्रेशन मारा था। सो द मोमेंट यू विल ऐड, अब सब कुछ यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सो फाइनली आपके पास 0 to π/2 ऐड करने के बाद 0 to π sin cos by sin 4 cos 4 इस टाइप का आएगा। Now kings will not work. Kings will not work means queen will work. So we have to half the element. Kings not working means the function becomes symmetric. इसलिए किंग्स नहीं काम कर रहा है, मतलब आपको एफ ऑफ एक्स करके किंग्स लगाओ फिर से एफ ऑफ एक्स दे रहा है, तो इसका सिग्निफिकेंस है फंक्शन एग्जैक्टली a+b/2 पे सिमेट्रिक होगा। इसका मतलब किंग्स लगाने से ये पार्ट ये बन गया और ये पार्ट वो बन गया। ठीक है, एंड दिस पार्ट हैज बिकम दिस एंड दिस पार्ट हैज बिकम दिस। इसलिए ग्राफ में चेंज नहीं आया, एरिया में चेंज नहीं आया, तो वहाँ क्वींस रूल लगाते हैं, हाफ करते हैं लिमिट। अब वो हाफ करोगे तो आपको फाइनली जो आएगा वो -π² 0 to π/2। ठीक है, -π² 0 to π/2 sin 2x/2 माइनस sin² 2x। अब फिर sin² 2x को cos में लिखो, cos 2x को 2 लो, तो इसमें आपको लगेगा 5 to 7 मिनट्स पक्का लगेगा किसी को भी। ठीक है, बहुत स्मार्ट बच्चा है जो डायरेक्टली ये क्वेश्चन देख चुका है टेस्ट सीरीज में, क्योंकि इन मेनी टेस्ट सीरीज दिस क्वेश्चन कम्स डायरेक्टली। Even in one of my video before this JEE Mains examination I have given this. यहाँ पे sin 4 नहीं था, शायद sin x ही था, सिर्फ 1 टर्म वॉज देयर इंस्टेड ऑफ 2, तो मॉडल इज एग्जैक्टली से। तो 5-7 मिनट में आपसे ये भी बन जाएगा। अब नेक्स्ट इफ यू वांट, सो 23rd क्वेश्चन वी कैन डू, क्योंकि दिस फॉर्म्स लाइक पैरेललोग्राम वाला फीलिंग दे रहा है ये, तो ये भी शायद आसान हो। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन, ABCD बी वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम।
सो वी हैव ए बी सी डी, ठीक है। अब फिर से इधर पॉइंट सी लाइज ऑन दिस एंड डी लाइज ऑन दिस, लेट मी सॉल्व हियर। सो वी हैव ए बी सी डी, दे आर द वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब आपको क्या किया, पॉइंट ए इज गिवन, इट्स -2, -1, and b is given 1, 0, c is let's say alpha, beta, and d is let's say gamma, delta. Now you already know the point c lies on this line and d lies on this. So if point c lies on some line and d lies on another line, so we know the parametric form of c. So alpha beta का एक relation मुझे पता है, क्योंकि if c lies on 2x minus y equal to 5, 2x minus y equals 5, it means 2 alpha minus beta equals 5, ठीक है। दिस माइनस दिस इक्वल्स 5, तो यहाँ से बीटा और अल्फा का एक रिलेशन है। इट मीन्स फंडामेंटली वी आर गेटिंग जस्ट वन पॉइंट टू डील विथ, राइट। फंडामेंटली वी हैव ओनली वन पॉइंट, बेसिकली वी हैव ओनली वन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ अल्फा, क्योंकि बीटा इज ऑल्सो रिलेटेड इन टर्म्स ऑफ अल्फा, ठीक है। तो ये भी अल्फा क्या रिलेटेड है। सिमिलरली गामा एंड डेल्टा इज लाइंग ऑन which line, 3x minus 2y equal to 6, so we know again 3 times gamma minus 2 times delta is 6. So basically we have only two variable, एक अल्फा हो गया एक गामा हो गया, because delta and beta is related, ठीक है। now from the parallelogram property what we know, अब देखो it means we have two variables now, alpha and gamma। पहले तो आपको क्वेश्चन को मैकेनिक्स क्रिएट कर साइमुलेट करना होगा दिमाग में, सॉल्व कैसे करेंगे बिफोर सॉल्विंग, और फिर सॉल्व करना, बिकॉज वन कंसेप्ट इज रेस्ट तो ऑब्वियस सॉल्यूशन। अब देखो पैरेललोग्राम में क्या होता है ना, द सम ऑफ कोऑर्डिनेट सेम होगा, क्योंकि इसका मिड पॉइंट सेम होगा। सो इफ आई विल टेक मिड पॉइंट ऑफ ए एंड सी, a plus c by 2 will be same as midpoint of b and d, b plus d by 2, and that's interesting. It means sum of x coordinate of ac is sum of x coordinate of bd, sum of y coordinate of a and c is sum of y coordinate। तो अपोजिट वर्टेक्स वाले का जो सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स होगा वो सेम होगा x और y में। तो बस वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जैसे ही वो करोगे अल्फा का वैल्यू -3, बीटा, अब ये सिंपल हो जाएगा, गामा -6, डेल्टा -12 होगा। सम ऑफ कोऑर्डिनेट निकालो, यहाँ से साफ दिख रहा है, अल्फा -2 इक्वल्स हो जाएगा 1 प्लस गामा, और दूसरा इक्वेशन आ जाएगा बीटा -1 इक्वल्स डेल्टा, ठीक है। अब गामा और डेल्टा ऑलरेडी है, तो तुम दोनों इक्वेशन को ऐड करके अल्फा बीटा फाइंड कर सकते हो सबट्रैक्ट करके, ठीक है। अब जैसे ही वो पूरा वैल्यू आ गया, तो सम ऑफ ऑल दिस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा दे वांट, दैट बिकम्स 32, ओके। सो ये 32 आ गया। तो ये क्वेश्चन भी इजी था जो एक्सपेक्टेड था। नेक्स्ट इज अ लाइन पासिंग थ्रू ए एंड बी, द पॉइंट्स ए बी सी वर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स ऑन द लाइन डिस्टेंस। अब ये वाला क्वेश्चन मैं कल के लेक्चर्स में क्या हूँ, ठीक है, तो मैं इसको 3 मिनट्स मान लेता हूँ। ये फिर डायरेक्ट क्वेश्चन है 3D से, एंड डेफिनेटली इट्स इजी, ये भी बन गया, ठीक है। अब मुझे इंटीजर टाइप में शायद मैं कितना क्वेश्चंस बना लिया हूँ, 1 2 3, ठीक है। 20 से कितना बनाया, 20 बनाया, और 21 बनाया 2, 25 3, 23 4 और 28। अब 5 क्वेश्चन बन गया है, ठीक है ना। तो हो गया क्वेश्चन ख़त्म, पेपर ख़त्म हो गया ना। अब मान लो अगर तुम स्टार्टिंग से 2-3 क्वेश्चन नहीं भी बनाए, अगर सपोज ये कैलकुलस वाला छोड़ भी दिए, कि मैं तो ऑलरेडी 5 बना चुका हूँ, सो स्टिल आपके पास अराउंड 70 to 80 मार्क्स आ चुके हैं। अब 70 to 80 मार्क्स इन दिस काइंड ऑफ पेपर, मतलब आपका परसेंटाइल डेफिनेटली बनने वाला है 99.45 से ऊपर ही मैथ्स में, ठीक है। अब देखो, अब अगर मैं क्वेश्चन 5 का बात करूँ, मान लो वापस, अब अभी भी तुम्हारे पास टाइम है सपोज 20 मिनट्स, तो अब क्या करोगे, नाउ विल कम बैक, और फिर से हम देखेंगे कौन प्रॉब्लम बना सकते हैं। अब यहाँ से देखा एफ ऑफ एक्स एक बहुत खतरनाक टाइप का दिया हुआ है, जी ऑफ एक्स खतरनाक टाइप का दिया हुआ है, देन वैल्यू ऑफ एफ ऑफ दिस प्लस जी ऑफ दिस। अब क्लियरली दिख रहा है ये एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स है, सो दैट मोटिवेट्स मी टू डिफाइन अ फंक्शन साई एक्स इक्वल्स एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। द अदर मोटिवेशन इज आई कांट डायरेक्टली कैलकुलेट एफ ऑफ लॉग 2, क्योंकि देखो कितना गंदा सा इंटीग्रेशन है, मोरेवर कितना गंदा सा इंटीग्रेशन है। Some of you might feel integration by parts, लेकिन both, because the hint is whenever limit of integration is variable, you think of differentiating this। अब डिफ्रेंशिएट करके क्या ही कर लोगे, क्योंकि एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स फाइन करना है, सो दैट मोटिवेट्स टू डिफाइन अ फंक्शन एफ प्लस जी। फिर ये पास्ट ईयर में एडवांस में मेनी क्वेश्चंस आर दिस, सो दैट विल गिव साई डैश एक्स क्या हो जाएगा, एफ डैश प्लस जी डैश। नाउ व्हाट इज एफ डैश, व्हाट इज एफ डैश,
एफ डैश में मॉड एक्स माइनस एक्स स्क्वायर आया, ठीक है, और ये दिस इज 2 टाइम्स ऑफ एक्चुअली 0 to x ये, बिकॉज दिस इज इवन फंक्शन, तो माइनस एक्स एक्स कैन बी रिटन एज माइनस एक्स एक्स, जो भी एरिया होगा दैट विल बी 2 टाइम्स ऑफ 0 to x वाला एरिया, तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ मॉड एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस जी डैश एक्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर को इसमें पुट करेंगे, सो दैट विल बिकम मॉड एक्स, एक्स स्क्वायर का पावर हाफ, ऑलवेज टेक मॉड एक्स, ओके, एंड ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर, तो बस खत्म। अब ये आपका जो आया वो साई डैश एक्स का वैल्यू है, ठीक है, इंटू 2x, because we'll differentiate this using Leibniz. ऐसे ही the moment I'll differentiate using Leibniz, I'll get psi dash x equals this into this, ठीक है। अब अगर तुम इसका वैल्यू देखोगे तो ये फाइनली कहाँ पे जा रहा है, तो ये क्वेश्चन लग रहा है गलत, क्यों, क्योंकि देखो ये एफ डैश प्लस जी डैश एक्स है वो कांस्टेंट हो जाना चाहिए, बेसिकली यही मॉडल होता है ये, लाइक वाई दैट काइंड ऑफ मॉडल विल हेल्पफुल, क्योंकि अगर वो कांस्टेंट हो जाएगा तो फिर में बाउंड्री कंडीशन से एफ ऑफ जीरो वी ऑलरेडी नो इज जीरो और जी ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो, तो वहाँ से मैं निकाल सकता हूँ आसानी से वैल्यू, तो यहाँ पे क्वेश्चन में मिसिंग है, दैट्स वाई ये कोचिंग वाले लोग गलत से छापते हैं, एनीवे because I could not find the official, like questions. It's so unfortunate that on official website of JEE Mains there is no question available officially. So I have to resort to coaching centers anyway for the question paper. Fine, at least we should thank the coaching centers. तो यहाँ पे एक्चुअल क्वेश्चन जो होना चाहिए ये e to the power भी फैक्टर था माइनस टी स्क्वायर डी टी, ओके, सो यू कैन चेक द ओरिजिनल क्वेश्चन e का पावर x। अब यहाँ से आपको पता है f डैश x प्लस जी डैश x क्या बनने वाला है, so it will be 2 times of mod x minus x square e का पावर minus x square into 1 and plus mod x into e का पावर minus x square into 2x। अब तुम क्लियरली देखो ये वाला जो टर्म है वो तुम्हारा कैंसिल कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 2x स्क्वायर e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, क्योंकि मोर देन जीरो हम ले रहे हैं, जीरो से आगे बढ़ रहे हैं, तो mod x इज जस्ट बिहेविंग लाइक x, तो ये सेकेंड टर्म तो कैंसिल हो गया। सो फाइनली जो मेरा ये एक्सप्रेशन आया एफ डैश प्लस जी डैश एक्स का, वो आ गया मेरा बन के क्या आया, ये 2x ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, एंड नाउ वी कैन इंटीग्रेट बोथ साइड, क्योंकि द मोमेंट आई इंटीग्रेट दिस इज ऑलरेडी इन टेबल बिकॉज एक्स स्क्वायर इज टी, सो 2x डी एक्स इज डी टी, तो मेरे पास बन के आया एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to x दैट क्वान्टिटी, सो दैट विल बिकम व्हाट माइनस ई का पावर माइनस मान लो अल्फ़ा, एंड दैट रेंज इज फ्रॉम 0 to माइनस एक्स, आई कैन टेल दैट रेंज फ्रॉम 0 to रूट ओवर दिस दैट अल्फ़ा इज लॉग रूट 9। तब ये कैलकुलेट करोगे तो माइनस ई का पावर लॉन 9 का पावर माइनस 1 प्लस 1 आ जाएगा, सो 9 टाइम्स ऑफ एफ प्लस जी इक्वल्स 8, सो एफ प्लस जी इज 8 व्हाट दे वांट 9 टाइम्स ऑफ एफ प्लस जी, ठीक है, सो दैट्स द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। अगेन दे वेर वांटिंग 9 टाइम्स ऑफ दिस, सो 8 इज द आंसर, मैंने बहुत मिस्टेक क्वेश्चन में कर दिया ये, एनीवे सो आई होप दिस इज क्लियर। तो आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ सम ऑफ यू टेल सर व्हेन यू इंटीग्रेटेड वेयर वाज द बाउंड्री कंडीशन, लाइक वेयर वाज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट वो आप यहाँ से निकाल सकते हो, क्योंकि एफ जीरो इज जीरो, यू पुट एक्स जीरो, 0 to 0 एनी एरिया विल बी जीरो, सिमिलरली व्हाट इज जी जीरो, 0 to 0 0, सो एफ जीरो प्लस जी जीरो इज ऑलरेडी जीरो, ठीक है, तो जब इंटीग्रेट करते हो तो वहाँ से लेमडा आसानी से फाइंड कर सकते हो बेस्ड ऑन इनिशियल कंडीशन। तो ये क्वेश्चन भी इजी था प्रोवाइडेड यू हैव ऑलरेडी सीन द सेम मॉडल, बिकॉज इन जेईई एडवांस लास्ट 3 years देयर आर मेनी क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, तो इससे आप ये भी सॉल्व कर लिए, ठीक है। चलो अब सम ऑफ यू विल टेल सर हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन 19, आई नो लाइक ऑप्शन 2 इज रॉन्ग, लेकिन इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सो क्लियरली वन वे ऑफ सॉल्विंग इज ए को आई कैन टेक ए बी सी डी ई एफ
GHI, and now if you multiply with 101, you should get this answer, right? You should get 202. So I can compare, because if I multiply, I'll get what? A plus C equals 2. Then the second row will give D plus F equals 0, and we'll have G plus I equals 2. Okay, similarly, if I'll use second equation, I'll get a relation. Third equation, I'll get a relation. And these relations are simple because it's not that complex that you can't solve. And if you see many standard solutions, they will go by this. But there is a smart solution. I'll tell you a very smart solution of this. अब देखो इसका smart solution कैसे होगा? Instead of solving for those 9 unknown, which is again I'm telling not that difficult. Still if you are smart, आप 5 to 7 मिनट में उसको किल कर सकते हो. सेकेंड सॉल्यूशन, ये मैं डायरेक्टली ए फाइंड कर सकता हूँ. देखो कैसे. ना इमेजिन ए इज सम मैट्रिक्स. नाउ वी नो व्हेन आई मल्टीप्लाई विथ, यू ट्राई टू सी दिस सेटअप, व्हेन आई मल्टीप्लाई विथ 101, तो ये मैट्रिक्स ये होगा. व्हेन आई मल्टीप्लाई ए विथ 101, इट मीन्स what is getting multiplied? The row A, B, C, D, E, F, G, H, I. Okay, so the answer that I'll get, which is 202, 2 into 1, this. So 202 I can think to be written in the first column of the resultant matrix. अब देखो, it means this information I am trying to decode just with a single expression like AB equal to C. अब कैसे? क्योंकि अगर मैं ए को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूँ, सो यू कैन ऑल्सो थिंक ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इन दिस वे, विच रेयरली विल फाइंड इन टेक्स्ट बुक एट JEE लेवल. इन हायर टेक्स्ट बुक इज ऑलरेडी देयर इन लीनियर अलजेब्रा. JEE लेवल पे यूजुअली नहीं बताते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है. मैट्रिक्स ए को अगर मैं इस कॉलम से मल्टीप्लाई करूँ तो उसका फर्स्ट कॉलम रिजल्टेंट निकालता है. ये भी एक तरीका है मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने का. अब देखो ये वही होगा, क्योंकि तुम मल्टीप्लाई करोगे दिस को दिस से, तो ये 2 आएगा रिजल्टेंट का. दिस इंटू दिस ये टर्म देगा, दिस इंटू दिस विल गेट दिस टर्म. फिर सेकंड वाले कॉलम को लिख दो, मीन्स -1 0 1, फिर इससे सेकंड कॉलम आ जाएगा -4 0 4. फिर थर्ड वाले को लिख दो A इंटू 0 1 0. सो इट्स लाइक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वाया कॉलम वाइज. यूजुअली व्हाट वी डू, रो टू कॉलम मल्टीप्लिकेशन. यहाँ एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके कॉलम से रिएक्शन करवा के. सो थर्ड इज 0 1 0 से द फाइनल आंसर दैट विल गेट इज 0 2 0. यहाँ से देख रहा हूँ. तो अब देखो, अब ये मैट्रिक्स डायरेक्ट निकल गया. कैसे? क्योंकि ए मैट्रिक्स इज C टाइम्स B इनवर्स. ठीक है. अब इस मैट्रिक्स का आप इनवर्स आसानी से निकाला, क्योंकि डेट बहुत आसान है, उसका तुम डेट कैलकुलेट कर सकते हो. एंड एडजॉइंट, सो दिस कैलकुलेशन विल बी फास्ट रादर देन सॉल्विंग द 9 इक्वेशन 9 अननोन्स. नाउ वंस यू नो ए, क्योंकि ए डायरेक्ट निकल गया, सी को मल्टीप्लाई कर लो B इनवर्स से, ए निकल गया. अब ए निकल गया तो A-3i आप कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है. अब जैसे ही आप A-3i कैलकुलेट करोगे, वहाँ से यू विल गेट टू नो इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितना है, क्योंकि A and 3i विल बी व्हाट fixed. A is already fixed ना. So if A is fixed, A-3i ऑलरेडी फिक्स हो जाएगा. ठीक है. तो अब A-3i आप ये कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ से दैट नॉन जीरो आएगा. ठीक है. इनफैक्ट आई नो द सॉल्यूशन, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग. तो दैट A यू कैन कैलकुलेट नॉन जीरो, सो दैट विल गिव यूनिक सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन. अगर इसका डेट 0 आता तो फिर कुछ भी हो सकता था, आइदर इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस और इट कैन गिव नो सॉल्यूशन. देन आइदर यू फाइनली पुट इन द इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन एंड चेक फॉर द कंसिस्टेंसी. मतलब ऐसा हो सकता है फर्स्ट 2 इक्वेशन इज टेलिंग x इक्वल्स 0 एंड y इक्वल्स 2, बट द थर्ड इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइंग दिस. इसका मतलब देयर इज नो सॉल्यूशन. तो या तो फीडबैक ले लो, नहीं तो फिर तुम क्रेमर्स रूल से कर सकते हो. बट क्रेमर्स रूल इज क्रिमिनल. क्रेमर्स रूल से इवन इफ ऑल डेल्टा इज 0, रिमेंबर दिस इज मिस्टेकली गिवन इन ऑल बुक्स, दिस इज नॉट सफिशिएंट कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन. आप अगर ऐसा हो भी जाए ऑल डेल्टा 1 2 3 एंड डेल्टा इज 0, इट माइट गिव नो सॉल्यूशन और इन्फिनाइटली मैनी. ठीक है. हाँ 4, सो यहाँ से कुछ भी आ सकता है, लेकिन अगर वन ऑफ द डेल्टा आई इज नॉन जीरो एंड डेल्टा आई 0, तब पक्का नो सॉल्यूशन आएगा. सो दिस इज नेसेसरी इन सफिशिएंट. ये क्यों आएगा? बिकॉज 2/0 इज अनडिफाइंड. सो इफ x इज अनडिफाइंड, x y z is related, so all of them must be nonsense. If capital delta is non-zero, unique solution is guaranteed. If capital delta is 0 and either one of them is non-zero, then definitely no solution is guaranteed. But if all of them is 0, then no comment. No solution भी आ सकता है, infinitely में भी नहीं आ सकता है. अब इसको कोई बच्चा फील तब कर सकता है जब वो क्रेमर्स रूल में प्रूफ किया होगा. Okay, so until unless you know the logic of why this should give no solution infinitely many, फील करके, not only proof, तो फिर आप उसका लॉजिक नहीं बता सकते हो. ओके. तो बेस्ट वे आप क्रेमर्स रूल अप्लाई करो, लेकिन अलर्ट रहो जब सब 0 हो जाए. देन यू हैव टू टेक फीडबैक. और इस पे एक सवाल ऑलरेडी इज देयर इन JEE एडवांस. ठीक है.
जिसमें आपको फंसा देगा अगर आप क्रेमर्स रूल को सही तरीके से यूज नहीं किए, सो इट विल बिकम क्रिमिनल फॉर यू, ठीक है, एंड यू लूज मार्क्स। आई थिंक देयर वाज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम योर साइड जो 29 और 30 क्वेश्चन को इसको कैसे सॉल्व करें। तो 29 इज डायरेक्टली बाय लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। 29 में तो कुछ खास दिख नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे इफ आई पुट 10x, ये बर्नौलीज टाइप का इक्वेशन है, ठीक है। सो व्हाट विल गेट सेकेंड स्क्वायर x dx by dy, either you think in terms of dy by dx और dx by dy। यहाँ पे dx by dy में थिंक करना ज़्यादा आसान है, क्यों? क्योंकि सेकेंड स्क्वायर x ऑलरेडी प्रोड्यूस हो रहा है, प्लस e का पावर 2y 10 स्क्वायर x प्लस 10x 0। अब क्लियरली दिख रहा है 10x को इफ आई टेक सम वेरिएबल t, सो इक्वेशन टेक्स द फॉर्म dt by dy, ये पूरा हो जाएगा, इन प्लस t इक्वल्स माइनस टी स्क्वायर e का पावर 2y। अब यहाँ से अगेन हाउ टू सॉल्व दिस, अब वी हैव टू डिवाइड, क्योंकि दिस शुड बी प्योरली अ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल y। टी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, देखो मोटिवेशन कम्स इन एवरी स्टेप, क्योंकि द मोमेंट यू लुक एट द क्वेश्चन आइदर इट विल बी डिफरेंशियल इन dy by dx और dx by dy। वाई? बिकॉज ऑफ लिमिटेड सिलेबस, इन योर सिलेबस यू हैव ओनली लीनियर डिफरेंशियल और होमोजीनियस, तो अब उसका यूज कर लो, ठीक है, क्योंकि सिलेबस इज लिमिटेड, दैट इज ऑल्सो अ बिग हिंट बिकॉज दे कांट आस्क एनी अदर फॉर्मेट। नाउ अगेन आई विल टेक 1/t एज यू, तो ये आ जाएगा माइनस डी वाई डी वाई। ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि सबके बस का बात नहीं है, अनटिल अनलेस कॉन्सेप्चुअली यू आर गुड। सो दिस प्लस यू इज माइनस ई का पावर 2y एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज ई का पावर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई विच इज ई का पावर माइनस वाई। अब ये भी याद रखना होगा, ई का पावर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर माइनस वाई, ई का पावर 2y डी वाई। तो यहाँ से जो इक्वेशन बना ई का पावर माइनस वाई बाई 10x, u का वैल्यू दिया ई का पावर वाई प्लस, नाउ एट x इक्वल टू पाई बाई 4 y 0 दे हैव गिवन, तो c का वैल्यू 0 आ गया इंटीग्रेशन कांस्टेंट का। अब पाई बाई 6 पे y अल्फा है, पाई बाई 6 डालो तो e का पावर 8 अल्फा जो आएगा शायद ये 9 हो जाएगा, e का पावर 2 अल्फा इज √3 आएगा। सो यू कैन टेक 4 टाइम्स वैल्यू। आई एम सॉल्विंग ऑल द क्वेश्चंस मोस्टली, क्योंकि एग्जाम तो आपका कब का खत्म हो गया, सो डोंट टेल सर यू हैव टेकन 1.5 आवर और समथिंग, क्योंकि मैं 30 का 30 क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ। मोर एवर आई एम एक्सप्लेनिंग ऑल्सो विथ लॉजिक, इसलिए चलो एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं सिमेट्रिक रिलेशन पे। बाय द वे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, ये पता है? अ रिलेशन इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इफ गोलू का इमेज इज गोलू। इट मीन्स वेन एवर गोलू एग्जिस्ट in the set A, Golu comma Golu must be in the relation. That is the reflection of each other. What is symmetric? If Golu and Bholu exist in the relation, then Bholu comma Golu must exist in the relation. मतलब if alpha comma beta is present, then beta comma alpha must be present in the relation. मतलब अगर हम आपके दोस्त हैं तो आप भी मेरे दोस्त होना चाहिए, तब वो रिलेशन सिमेट्रिक होगा। ऐसा गारंटी नहीं है, बिकॉज आई नो Mr. Alpha, but there is no guarantee Mr. Alpha knows him. Or maybe you know me because I am teaching you, but I don't know you. कौन सा सब्सक्राइबर है, ठीक है? तो और ट्रांजिटिव क्या? ट्रांजिशन तो तुमको पता है, थर्मोडायनेमिक्स में ट्रांजिशन टेम्परेचर। सो इफ A, B is present in the system and B, C is present in the system, then B is acting like a transition element, मतलब बीच वाला एलिमेंट। Then it must imply A, C should also be present in the system. अब देखो सिमेट्रिक रिलेशन में इफ गोलू कोमा भोलू इज प्रेजेंट देन भोलू कोमा गोलू शुड बी प्रेजेंट। अगर नहीं प्रेजेंट है तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर तुम हो सिस्टम में तो फिर हम भी होना चाहिए। बहुत इगोइस्टिक बात है, मतलब सेल्फिश बात है, नॉट इगोइस्टिक। अगर नहीं हो तो ठीक है, तब आई डोंट केयर। सो दैट्स वाई इन रिफ्लेक्सिव रिलेशन फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू सेट ए कॉमा ए मस्ट बी द पार्ट ऑफ रिलेशन, ठीक है? तो फॉर ऑल ए वाला है ओनली इन केस ऑफ रिफ्लेक्सिव। लेकिन सिमेट्रिक में क्या, इफ ए कॉमा बी नहीं बोल रहा है ये, ओके? अगर ए कॉमा बी रिलेशन में है तो बी कॉमा ए होना चाहिए। सिमिलरली फॉर ट्रांजिटिव। तो अब क्वेश्चन क्या है, देयर इज अ सेट ऑफ 100 नेचुरल नंबर्स, आर बी ए रिलेशन ऑन। कैसा रिलेशन है? भाई बहन का रिलेशन, टीचर स्टूडेंट्स का रिलेशन। क्या रिलेशन है? टॉपर्स का रिलेशन, फ्लॉपर्स का रिलेशन। क्या रिलेशन है? यहाँ पे दे दिया एक्स एंड वाई इज रिलेटेड, ओके? सो एक्स कॉमा वाई दिस ऑर्डर पेयर फॉर्म्स अ रिलेशन इफ एंड ओनली इफ 2x इज 3y। जैसे सपोज x का वैल्यू में 6 ले लिया तो y का वैल्यू 4, तो ये पॉसिबल है बिकॉज 6,4 इज कमिंग फ्रॉम दिस बॉक्स। ओके, देखो 12 इक्वल्स 12, ठीक है? नाउ R1 भी द सिमेट्रिक रिलेशन होने सच दैट R इज अ सेट ऑफ R1। अब R1 जो है वो सिमेट्रिक रिलेशन है। सिमेट्रिक रिलेशन मतलब क्या? अगर जैसे देखो 6,4 इज अ पार्ट ऑफ दिस रिलेशन, क्योंकि इज सेटिस्फाई, तो क्या 4,6 भी पार्ट ऑफ रिलेशन है? नहीं है,
क्योंकि अगर x 4 हो जाएगा तो 8 = 12 तो नहीं है, इसका मतलब ये पेयर तो R1 को सिमेट्रिक बनाएगा ही नहीं। आई होप दिस इज क्लियर। यस, वेरी गुड। तो फिर क्वेश्चन का अपने मतलब समझो, ठीक है। अब और R इज अ सेट ऑफ R1, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन R1 इज एन, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ n। अब बताओ R कैसा होगा। अगर R सेट ऑफ R1 है तो R का क्या क्या वैल्यू हो सकता है। अब तुम आराम से कर लो। अब तुम प्ले करो रिलेशन R1 सिमेट्रिक है, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन R1 इज द मिनिमम वैल्यू। अब मिनिमम वैल्यू n का कितना हो सकता है। सो आई विल प्ले विथ x। इफ आई विल टेक द वैल्यू ऑफ x अगर 1 लेंगे, क्योंकि y मस्ट बी 2x/3 और x y इंटीजर है, तो x को 3 का मल्टीपल होना होगा। तो बस खत्म है क्वेश्चन। x अगर 3 लेंगे तो y 2 आ जाएगा, x 6 लेंगे तो y कुछ आएगा 4, x अगर हम 9 लेंगे तो y 6 आएगा, x अगर हम 99 लेंगे तो ये 66 आएगा, ठीक है। अब सपोज इफ आई टेक x2 फिर y3, ये तो पार्ट ऑफ रिलेशन नहीं आएगा ना। R1 भी एसिमेट्रिक रिलेशन है, सो दैट R इज अ सेट ऑफ R1, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन R1। तो अब बताओ, अब सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होगा। अगर 3,2 सिस्टम में है, 3,2 सिस्टम में है, तो फिर 2,3 भी सिस्टम में होना ही चाहिए। ओके, सो R1 इज नॉट दिस, बट R इज अ सबसेट ऑफ दिस रिलेशन। क्लियर। तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू ऑफ n कितना आ गया, मिनिमम वैल्यू ऑफ n कितना आ गया। अब देखो इस R में कितना ऑब्जेक्ट्स हैं, 33 एलिमेंट्स आर देयर। ओके, इसका मतलब वो रिलेशन R1 में कितना होना चाहिए। R be a relation. See, this relation is not R1 बाबू, it's R, because relation R is given by 2x and 3y, ठीक है। R1 be a symmetric relation only. अब R1 अगर symmetric such that R is a set of R1। अब इस पे सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होगा। अगर 3,2 को मैं R1 में रखा, अब चूंकि R1 सिमेट्रिक है, 2,3 को भी रहना होगा। तो मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट R में, हम R में तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है 33, तो मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट R1 में हम कितना लिख सकते हैं, इसका ट्वाइस, क्योंकि अगर ये रहा तो कंपलसरी नेक्स्ट रहना होगा। सो अपार्ट फ्रॉम 66 वी कैन हैव मोर एलिमेंट, ठीक है। जैसे 2,2 भी हो सकता है R1 में, बिकॉज वी डोंट नो विच काइंड ऑफ रिलेशन R1 इज। 3,3 भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम जो है वो 66 होगा, ठीक है। मैक्सिमम कितना होगा, इनफाइनाइट हो सकता है। आई होप दिस क्लियर। So see, this is how we solve a mains paper by taking into consideration all the circumstances, ठीक है। अब इसमें डेफिनेटली इस एफिशिएंसी से आप सॉल्व नहीं कर पाओगे मैक्सिमम बच्चे, ऑफ कोर्स सम ऑफ यू कैन डू इट, लेकिन अगर इसका 70-80% भी टेक अवे इफ़ यू आर टेकिंग, तो आप आसानी से बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो इसमें फंडामेंटली टेक अवे क्या था, जो यू शुड अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस विच इन यू आर कॉन्फिडेंट एट, लाइक फ्रॉम द चैप्टर्स, इवन इफ दोज आर डिफिकल्ट, स्टिल आपसे हो जाएगा। इवन इफ इट इज़ टेकिंग मोर टाइम, इट्स वर्थ, क्योंकि 70 मार्क्स भी ले आओगे तो काफ़ी अच्छा है इन द बिगनिंग। दोज हु आर टारगेटिंग वो 100% तो आपको सिगमेंट्स में करना है। सिगमेंट्स में कैसे करना है, 99.99 प्लस 100% अगर लाना है, दैट्स नॉट डिफिकल्ट, मच डिफिकल्ट फॉर दोज हु आर ऑलरेडी टुवार्ड्स द एडवांस प्रिपरेशन इन ए रिग्रेस वे, स्ट्रॉन्ग वे। तो उसके लिए पहले आप तो 15-20 क्वेश्चन को निकाल दो इन 40 मिनट्स, ट्राई टू सॉल्व 40 क्वेश्चन। फिर इंटीजर टाइप में यू हैव टू बी अलर्ट, क्योंकि इंटीजर टाइप में तुमको सेलेक्ट करना है। So selection should not be based on just easy question. More than easier, selection should be based on the chapters in which you are confident at. क्योंकि वहाँ पे जैसे ही आपका 5 क्वेश्चन सही हो गया इन द फर्स्ट 15 मिनट्स, तो यू विल डेवलप कॉन्फिडेंस। अब उस सेल्फ कॉन्फिडेंस से आप नेक्स्ट 3 क्वेश्चन तो पक्का सही कर दोगे, और जैसे ही 6-7 क्वेश्चन इन अ रो यू आर गेटिंग करेक्ट, तो विद दैट कॉन्फिडेंस इट बूस्ट। अब हाउ टू गेट 6 क्वेश्चन इन अ रो करेक्ट, सो फॉर दैट इफ यू आर सॉल्विंग 6 क्वेश्चन विच इज गिवन इन द क्वेश्चन पेपर इन द सीक्वेंस, डेफिनेटली यू विल बी स्टक। तो आप खुद से सेलेक्ट कर लो और स्मार्ट बनो, ठीक है। थैंक यू, हैव अ गुड डे। एंड यूजुअली आई डोंट टेल यू टू like and subscribe the channel, but definitely I know like all of you are already doing it, but please share the channel as much as possible.